Check the mic and make sure it sound right, boys. Before I introduce my guest, I remember 2 or 3 months ago, I started this podcast with my friends here, and we talked about only COVID 19. Today, I'm getting back to the same topic, but in another way. Today, I am talking about COVID 19 effect on kids, not the biological effect, not how they get sick, but in more of a social manner. COVID 19 is typically benign to children, usually presenting a mild flu or nothing at all. But for society's youngest members, the effects of pandemic go beyond the disease itself. I mean, I remember when I was a kid, I used to go play outside. I used to go meet my friends. And I mean, that was the most important part of my going to school or socializing in my neighborhood rather than actually studying. Because to be very honest, we do not learn much till we are what, 6 7 years old. After that, we actually understand what going to school is and what we actually have to learn. It's not just making friends. But before that, whatever happens, it's more important to us than the teaching itself. And from the moment a child is born, socializing plays an important role in their development. From learning to share uh, their stories, honing their language skills. They know how to talk to their friends, how to talk to other people, because they have only talked to what, two, maybe four people at their home, parents, grandparents. But now, with social distancing measures in place, people staying at home, parents working from home, kids studying from home, I just thought about what is happening to those kids who used to go to play school and play all day long, sleep, learn fun stuff, and draw. But I don't know what is happening. And for that, today, our guest is someone who knows about this, and I would like to welcome Miss Sonali. Miss Sonali, welcome to the Arrow, and I would like you to first introduce yourself to our viewers here. Yes, great evening to one and all. And first of all, I would like to say thanks to Varun and all the Arrow team. Uh, myself, Mrs. Sonali Parag Bachav, I have completed my engineering from computers. Then I have completed my master's in business administration. And when I started this business, this play school, after that, I have pursued the certification of early childhood care education, and then many more workshops. Okay. And we have started a play school in 2015. Thank you. So, tell me, as I didn't know that you were an engineer by your degree, and you are now also a master's in business administration. What made you start this play school in the first place? When I was working in a engineering college as a lecturer for 3 years, and after that, I have also applied for a software company as a tester. But when I go there and started working, so I think there is no growth for me, and there is no opportunity for me to grow myself as well. The whatever means क्या हो रहा था कि जो हम लोग it's a traditional learning and giving जो भी process था, it's going on. So फिर in Nasik city, there is no good opportunities for computer engineers. So that's why I and my family took the decision to go into the business.
तो जब भी हम लोगों मैंने और मेरे हस्बैंड ने we have decided to come into the business. So at that time, I have searched so many options for me, क्या business करना चाहिए, because I have a child. So उसको भी सोच के मैंने दिमाग में सोच के बहुत सारे ऑप्शन देखे थे, लाइक आइसक्रीम पार्लर खोलना है या फिर कॉस्मेटिक्स बिजनेस में जाना है या फिर ट्रेडिंग करना है. देयर आर लॉट ऑफ बिजनेस. देन फूड इंडस्ट्री में जाना है, लाइकवाइज. बट ये सब सोचा, लेकिन फ्रॉम आई डोंट नो, फ्रॉम माय चाइल्डहुड आई लाइक टू टीच. आई लाइक व्हेनेवर देयर इज अ टीचर्स डे, आई प्ले अ गुड रोल ऑफ द टीचर फ्रॉम थर्ड या फोर्थ स्टैंडर्ड्स. ओके, जब भी थर्ड या टीचर्स डे आता था, तो जब भी हम टीचर्स को रिलैक्सेशन के लिए बच्चों को बोलते थे कि आप ही टीचर बनो एंड यू गो एंड टीच द किड्स. So at that time I play the teacher's role. So तभी से मेरे मन में ये टीचिंग का जो एक ये है कि नहीं, हमें टीचिंग करना चाहिए. एंड आई हैव दैट मीन्स वो जो है रोल प्ले करने के लिए मुझे वैसे भी अच्छा ही लगता था. फिर हम लोगों ने सोचा कि अरे बिजनेस, बिकॉज जो फैमिली में बैकग्राउंड था एज अ वुमन करके, ऐसे कोई बिजनेस में था ही नहीं फर्स्ट टाइम कि अगर आइसक्रीम पार्लर चालू करेंगे. तो एट दैट टाइम द टाइम इशू इज मेजर फैक्टर फॉर अस, बिकॉज आइसक्रीम पार्लर जब चालू करना था, तो अगर इन समर टाइम्स 12 या तो फिर 11 बजते थे. सो एट दैट टाइम हाउ मैं कैसे मैनेज करती थी, क्योंकि बच्चा भी था छोटा एंड ऑल दैट. सो इसलिए वो भी हम लोगों ने क्लोज किया. देन फिर पूरा मार्केट सर्वे करने के बाद जब मेरा बच्चा he was 3 years old and we have admitted him to the play school nearby our home. When we have admitted our kid to the nearby play school, so तभी वो जो सारा एटमोस्फियर देखा, वो जो वहाँ पे जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस था, वहाँ पे जो एजुकेशन था, हाउ दे ट्रीट टू द किड्स, इट वाज रियली वेरी लाइक डेंजरस. सो तभी सोचा कि यहाँ के लोगों को ऑप्शन नहीं है. That's why they are going to that particular preschool. So why don't we start our own preschool? So तभी मैंने सोचा कि अगर मैं अब बच्चों को अच्छा एजुकेशन क्यों ना दे पाऊँ. So वो तभी हम लोगों ने डिसाइड किया एंड वी हैव स्टार्टेड विद द प्री स्कूल. आई सी. मैं आज तक कभी प्री स्कूल नहीं गया. जब मैं छोटा था तब भी नहीं गया. आई थिंक तब शायद इसका प्री स्कूल होते भी नहीं थे. आई डोंट नो कितने साल हो गए. बट मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जिनके बच्चे वहाँ पे जाते हैं प्री स्कूल में. सो व्हाट इज taught in these preschools? I do not know anything. I mean, the viewers might know everything, but for myself, I'm asking. Okay. So preschool is basically for the developing, एज यू सेड वरुण, कि प्री स्कूल में बच्चों का जो सोशल डेवलपमेंट है, फिजिकल डेवलपमेंट है, इट इज फर्मली बिल्ट इन प्री स्कूल्स. ओके, तो प्री स्कूल में बेसिकली वही होता है कि बच्चों को कम्युनिकेशन सिखाया जाता है, हाउ टू कम्युनिकेट विद द पीपल, हाउ टू कम्युनिकेट विद योर फ्रेंड्स एंड हाउ टू बिहेव और हाउ टू शेयर द थिंग्स विथ योर फ्रेंड्स. बिकॉज आजकल बहुत सारी न्यूक्लियर फैमिलीज है, द किड्स डोंट नो कि हमें भी ये शेयर करना है. इट्स नॉट ओनली आर्स, we have to share it with our friends, with our suppose with our teacher. If I teach teacher ने कुछ मांगा तो टीचर को भी देना है. ये बच्चों को उतना ध्यान में है ही नहीं, because they are living in a particular surrounding like only 4 heads or 3 heads. So बच्चों को ये सारी जो चीजें है प्री स्कूल में, दे आर मतलब जो मेन पार्ट है बच्चों का स्कूलिंग का, इट्स अ फाउंडेशन ऑफ द किड्स. ओके, जो स्कूलिंग है उनका, यहाँ से फाउंडेशन होता है बच्चों का. इसमें ईटिंग हैबिट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट, बिकॉज अभी देखा जाए तो बच्चों का जो ईटिंग का प्रॉब्लम है, बहुत सारी मम्मीज बोलती है मेरा बच्चा तो खाता ही नहीं है, उसको कार्टून लगाओ तभी ही खाता है, और अदरवाइज वो मतलब उसे भूख भी लगती है, अनलेस मतलब जब तक हम लोग बोलते नहीं तब तक भी खाता नहीं है. ही डोंट हैव अ सेंसेशन. तो ये सारी चीजें जो है उनको एक रूटीन वर्क में लाना, उनको ये सारी हैबिट्स जो है उनको सोशली, फिजिकली, इमोशनली, एवरी फ्रॉम एवरी वे वी हैव टू डेवलप द किड्स. इसका
मतलब ये जो है बहुत डिफिकल्ट टास्क है बच्चों के साथ, उनको पूरा बेसिक से ऊपर तक लाना। So, my other question will be that these are the things which you found out by studying or by through a course, or how did you do it? And the other question connected to that will be that what is the philosophy for teaching kids in a play school? Yes, as the name of our school is a ABC play school, so everyone means सभी को ऐसे लगेगा what is this ABC. So उसके पीछे हमारा एक टैगलाइन है around beautiful culture. So our philosophy behind the school is to provide a healthy environment and a good relationship with each and every member of the school. So बच्चों को सिर्फ सिखाना, this is not the role of the play school teachers and the staff. तो बच्चों को जो हेल्दी एनवायरनमेंट है, उनको खेलने के लिए, उनको पढ़ने के लिए, उन्हें बढ़ने के लिए, उनका जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, तो ईच एंड एवरी हर तरीके से उन्हें ग्रो अप करने के लिए we are giving the platform to the kids. So this is our philosophy. And learn and play means बच्चे जो है वो their sitting time span is very less. It's just 3 minutes. 3 मिनट्स के ऊपर बच्चा बैठ नहीं पाता है एक जगह पे, तो हमें उन्हें कैसे अपने कनेक्ट में रखना है, हमें उन्हें कैसे जो टॉपिक हमें उन्हें डिलीवर करना है वो किस तरीके से देना है, ये अपने जो स्कूल और कॉलेजेस में बच्चों को एक बेंच पे एक लाइन में बिठाते हैं। दिस इज नॉट द प्री स्कूलर्स, दिस इज नॉट फॉर प्री स्कूलर्स। प्री स्कूलर्स को हमें उनके तरीके से बिठाना पड़ता है। मतलब कभी वो सर्कल में बैठते हैं, समटाइम्स दे लर्न थ्रू प्लेइंग, लाइक व्हेन दे सीट ऑन अ रॉकर, तो उन्हें वहां पे भी हमें 1 2 ABCD लाइक वाइज वी हैव टू टीच द किड्स। अगर कोई बच्चा बोल नहीं पाता है सीक्वेंस में 1 2 3 या तो फिर ABCD, तो थ्रू एक्सरसाइज वी टीच द किड्स। सो in this way we connect with the kids through different activities. Well, Sonali ji, as you have explained that what are the challenges you face in basically in the preschool. So if I understand, like if we go in higher secondary and there, like students will be quite mature. They know what problem they have. They can express themselves. But Yes. in this case, most of the kids, I mean almost all kids, will not be able to express their problems. So I would like to ask in about your staffs and the teachers. Means what are their educational background, and more than what are the soft skills you look on those staffs and teachers when you are hiring them. Okay. सी, जो प्री स्कूल टीचर्स होते हैं दे आर द सेकंड मदर ऑफ दिस किड। ओके, उन्हें अपने जो उनकी मदर होती है उसी के जैसे हमें भी ट्रीट करना पड़ता है बच्चों को। देन एंड देन दे लाइक दे लव टू कम टू द स्कूल। सो द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ व्हेन वी हायर द टीचर फॉर एजुकेशन, सो दे मस्ट कंप्लीट देयर like bachelor's degree with child care education certification. There are so many courses, diploma courses, they are 6 months, 1 year, then ECCED course, this then Montessori course, then teacher training course. So teacher must have that courses with along with their bachelor's degree. Then the staff is that auntie. The auntie should be educated till 12th pass. Auntie भी 12th pass होनी चाहिए, because why? Because some students are from they are using some English words like small English words. I go to washroom, or auntie, I want water, or something else. So in that case, the auntie should know what is water. Auntie should know that small words. So likewise, the education criteria is decided likewise. And soft skills, like I said, the every teacher and every auntie and every staff of the preschool has that skills to behave like a mother.
मतलब बच्चे की क्या जरूरत है, उसे पहले तो यहाँ पे आने के बाद बच्चों को एक सिक्योरिटी चाहिए, एक सेफ्टी चाहिए, दे शुड फील सेफ, दैट वो अभी जो है आफ्टर 2 और 3 इयर्स दे आर, वो एक बोलते हैं ना कि एक शेल्टर के बाहर आते हैं, उनका जो सिक्योर जोन के बाहर वो हमारे ही तरफ डायरेक्टली आते हैं। तो सेम टाइम वी शुड गिव देम दैट सेफ्टी, दैट सिक्योरिटी, दैट लव। तो ये जो सारी चीजें हैं ये बच्चों को हमें देनी पड़ती है, देन एंड देन दे बिलीव अस एंड देन दे सेटल डाउन विथ अस। सो एट दैट टाइम वी हैव टू बिहेव लाइक अभी तुझे क्या चाहिए। पहले तो बच्चे आते, दे आर क्राइंग फॉर मंथ, फॉर 15 days। सम किड्स डिड नॉट क्राई बिकॉज वो पहले से ही बहुत ज्यादा एक्टिव रहते, डैशिंग रहते, दे डोंट क्राई। बट जो बच्चे बहुत ज्यादा इमोशनल होते, लाइक दे आर मेनी, मतलब बहुत ज्यादा पेरेंट्स के साथ, ग्रैंड पेरेंट्स, कोई बच्चा अपने अंकल के साथ अटैच्ड होते हैं, उनको तभी अंकल ही चाहिए, तो उन्हें वो सिक्योरिटी हमें देनी पड़ती है, उन्हें वो प्यार देना पड़ता है, फिर अंकल से पूछना पड़ता है कि हाउ यू ट्रीट विथ योर नेफ्यू। तो उस तरीके से हमें वो बच्चों को ट्रीट करके एक प्लेटफॉर्म में लाना पड़ता है। Okay, nice. Actually, when you're telling you have to give security to kids, so it is a perspective of kids, means they should feel secure and they should feel quite comfortable and homely. Yes. But other hand, how do you convince parents? Because when one parents is coming and they are putting their kids, so at the same time they also look for the security, and they know that of course kids might is not mature and they will behave, sometime cry. So how your staff will react to that? So they need some sense of security in that sense, right? So how do you Convince to the parents, right? yeah yeah Okay, so in that same case, we first of all we give them a minimum security measures, like we have a CCTV camera. If you want a CCTV access, then what your child is doing or how he is behaving over here. So we give them a security, that CCTV access, or else we will take the video of that particular kid, how he is behaving with his friends, with the teachers, how he is responding. So everything is capturing with the video, photos, and will send to the parents, so that parents को वो भी feel करते हैं कि नहीं यार बच्चा जो है हमारा, he is getting settled down over there. तो उस तरीके से देन वी हैव द सेफ्टी डोर्स, लाइक बच्चा, मतलब पेरेंट्स को वो भी दिखाना पड़ता है कि हमारे यहाँ पे सेफ्टी डोर्स है, कि बच्चों को लाइक वो भाग ना जाए। कोई कोई बच्चे बहुत एग्रेसिव होते, थोड़ा सा भी डोर ओपन किया दे स्टार्ट रनिंग फ्रॉम द स्कूल। तो उस केस में हमें कंटिन्यूअसली अपने डोर्स क्लोज रखने पड़ते हैं, लाइक ऊपर वाला जो उसका नॉब रहता है, लॉक रहता है, वो क्लोज, हमेशा क्लोज रखना पड़ता है। बिकॉज आजकल के बच्चे इतने ज्यादा स्मार्ट है कि वो जो लैच रहता है दे कैन ओपन इट इजीली, लाइक मतलब वो इतने छोटे रहते हैं फिर भी दे नो हाउ टू ओपन द डोर। तो वो तरीके से ये सारी जो चीजें हमें पेरेंट्स को एक्सप्लेन करनी पड़ती है। देन लाइक जब पिक एंड ड्रॉप होता है बच्चों का, उस टाइम पे हम लोग पहले ही पेरेंट्स से पूरी इंफॉर्मेशन लेता है कि हु विल बी गोइंग टू पिक एंड ड्रॉप टू योर किड, लाइक उनकी भी इंफॉर्मेशन, जो डेटा रहता है वो कलेक्ट किया जाता है, उनके फोटोज लिए जाते हैं, अगर अंकल आने वाले हैं, अगर दादाजी आने वाले हैं, अगर इफ द ग्रैंड मदर इज गोइंग टू पिक द चाइल्ड, देन प्लीज गिव देयर डिटेल्स, देयर शो, मतलब उन्हें फिजिकली भी हम लोग बुलाते हैं। एंड अनलेस एंड अनटिल जब तक वो ही पर्सन नहीं आता है, हम लोग बच्चों को नहीं छोड़ते हैं बाहर। then other security measures are like when they are like क्लासरूम में जब एक्टिविटीज होती है, टीचर उन्हें टीच करती है, तो एक्टिविटीज जब हम लोग लेते हैं, लाइक आर्ट एंड क्राफ्ट की बहुत सारी एक्टिविटीज होती है प्री स्कूल के लिए, तो फिर उसके लिए जो भी लगता है मटेरियल, इट इज डेंजरस फॉर द किड्स। सो वो जो है लाइक सीजर्स है, फेविकॉल्स है, क्रेयॉन्स है, पेंसिल्स है, इरेजर, शार्पनर, एवरीथिंग इज रिस्की फॉर देम। सो इन दैट केस वी ट्रेन द टीचर कि आपको बच्चों को जैसे हर एक के हाथ में दो, उसकी तरफ आपको पूरा ध्यान देना है, उसका फिनिश होने के बाद ही
it is pass on to the next kid. मतलब क्या होता है, अगर हम लोग एक ही साथ सभी बच्चों के हाथ में वाटर कलर या तो फिर ब्रश दे देंगे, कोई उसे खा लेगा, कोई उसे कपड़ों पे लगा देगा, कोई आंख में डाल लेगा. There are so many chances to mess up all these things. So ये जो है टीचर को हमें पहले स्टार्टिंग में पूरा ट्रेन करना पड़ता है कि अगर आप कोई एक्टिविटी लेते हो तो सीजर को आपको ठीक से हैंडल करना है, बच्चे कैसे सीजर होल्ड कर रहे हैं. सो टेक दिस थिंग्स इनटू कंसिडरेशन. देन अदर जो सिक्योरिटी है, जो सेफ्टी मेजर है, लाइक हेल्थ 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 का हम लोग अगर पॉइंट कंसिडर करेंगे तो बच्चों को हमें बिफोर एंड आफ्टर मील उनका हैंड वॉश होता है फॉर हाइजीन पर्पस. तो वो जो आंटीज जो है इस, तो दे आर प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. उन्हें हमें ये जो है हेल्थ का इशू या तो फिर हाइजीन सिक्योरिटी, तो आंटीज को हमें उस टाइम बहुत ज्यादा ट्रेन करना पड़ता है कि बच्चों को आपको प्रॉपरली हैंड वॉश करना है. देन जब वो फिर आफ्टर 2 or 3 months द किड्स कैन इजीली and properly wash their hands with their selves. Great. So in that process, how basically how do you decide what each and every kids needs to do? I mean, basically, what thought process goes behind it? See, some kids are like they are coming from very emotional background. तो वो जो इमोशनल बच्चे होते हैं वो तुरंत समझ में आते हैं. दे आर कंटिन्यूअसली क्राइंग फॉर देयर मॉम, देयर लाइक कोई दादी के लिए रोता है, तो उस टाइम पे समझ में आता है कि ही इज अ इमोशनल गाय और ही इज अ इमोशनल किड. तो उसे हमें उसको तब गोदी में भी लेना पड़ता है. वो फिर उसे हग करके उसे एक हग जो रहता है, इट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर दिस किड्स. क्योंकि हक देने के बाद उनको जो पता चलता है कि नहीं, ये जो पर्सन है, ये जो सामने वाला इंसान है, दिस इज फॉर मी ओनली. तो फिर वो उस तरीके से वो जो बच्चे हैं कि इमोशनली जो अटैच रहते हैं, तो इमोशनल बच्चों को हमें इस तरीके से करना पड़ता है. देन कोई बच्चों को अप्रिसिएशन लगता है, और अगर इफ समटाइम्स बाय डिफॉल्ट इफ वी निग्लेक्ट हिम और हर विदाउट गिविंग हिम अप्रिसिएशन, तो वो ही स्टार्ट्स क्राइंग. तो अभी तभी वो भी हमें तुरंत समझ में आता है कि इसे अप्रिसिएशन की जरूरत है. कि एवरी टाइम, अभी आजकल तो ये बहुत हो गया है, वाह कुछ हुआ क्या, वाह वेरी गुड आर्यन, वेरी गुड आर्या. सो लाइकवाइज वी हैव टू अप्रिशिएट द किड्स टाइम बाय टाइम. मतलब हर एक हमें 5 या 10 मिनट में कुछ भी हो, सभी को वेरी गुड बोलना पड़ता है. तो बच्चे लाइक हाँ मैंने कुछ तो किया है, एंड फिर उन्हें भी टीचर बहुत अच्छी लगती है. फिर वो घर पे जाके वो ही मैसेज डिलीवर करते हैं, आज मुझे टीचर ने बहुत अच्छा बोला. सो नेक्स्ट डे दे कम अप विथ न्यू एनर्जी, न्यू लव, एंड लाइकवाइज दिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन. तो बच्चों की जो साइकोलॉजी है, जो उनकी उनकी जो नीड है, वो इस तरीके से हमें समझ में आती है. कोई बच्चे रहते हैं कि उन्हें समटाइम्स दे वांट टू गो फॉर द वॉशरूम, तो वो जब भी मतलब क्या होता है, वो जब आता है तब अच्छी से खेलता है, एवरीथिंग इज गोइंग वेरी नॉर्मल एंड प्रॉपरली, एंड आफ्टर हाफ एन आवर और फिर 1 hour ही स्टार्ट्स क्राइंग. तो फिर हमें पहले 2 दिन तो कुछ नहीं समझता है. फिर उसकी मम्मा जब आती है, वो भी कभी बताते हैं मैम ऐसे ऐसे था, इसलिए फिर तभी वो रिकॉग्नाइज होता है वो जो पार्ट है कि इसे जब वॉशरूम में जाना होता है तभी वो रोता है. तो वो उसकी जरूरत थी कि वो बता नहीं पाता था ओपनली. तो फिर उसे वो हर टाइम, फिर फ्रॉम थर्ड डे वी कंटिन्यूअसली आस्किंग हिम फॉर द सेम थिंग. तो फिर ये जो सारी चीजें हैं वो पर्टिकुलर वो बच्चे की तरफ ध्यान देके पूरा कैरी आउट करना पड़ता है. Great. I mean, basically, as Varun also told in initially, he did not go to the preschool, so we did not understand, because I think this started nowadays. Yes. So, and you have told what is the psychologically how you need to handle the kids and emotional supports. But I would like to ask in a other context, physical context. Like, so do you involve them in any active play, games or something to develop Yes. their motor skills? यस यस यस. प्री स्कूल का जो रोल होता है
वो एक्टिविटी बेस ही होता है। उन्हें जितने हम लोग ज्यादा गेम्स देंगे, जितना ज्यादा हम लोग एक्टिव प्ले देंगे, इट डेवलप्स देयर ग्रॉस मोटर स्किल्स एंड फाइन मोटर स्किल्स। सो व्हाट इज एग्जैक्टली द ग्रॉस मोटर स्किल? तो ग्रॉस मोटर स्किल जो है वो अपने जो लार्ज मसल्स है, लाइक हैंड के जो है, देन लेग के जो काफ्स है, नीज है, देन योर फुट, it involves under the gross motor skills. So ये जो है it's nothing but the physical development of the child. तो बच्चे की जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो ये एज में, ये पर्टिकुलर फेज में बहुत अच्छे से होना चाहिए। And second is fine motor skills. So fine motor skills is the development of your small muscles, like it is in your wrist, then your fingers, palm. तो इसी के अंदर आपकी फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होती है। तो फाइन मोटर स्किल्स के लिए हमें बहुत सारी एक्टिविटीज लेनी पड़ती है। आजकल के बच्चे दे आर होल्डिंग द पेन लाइक दिस, और लाइक समथिंग लाइक, दे आर वेरी डिफरेंट। मतलब उनकी जो होल्डिंग की जो पोजीशंस रहती है वो बहुत अलग होती है। तो वहां से हमें उनके ऊपर काम करना पड़ता है। तो उसके लिए बहुत सारी एक्टिविटीज है। थ्रेडिंग एक्टिविटी है, देन लाइक अरेंज द ब्लॉक्स, एक के ऊपर एक ब्लॉक्स अरेंज करो, देन थ्रेडिंग करो, देन पेंटिंग है, स्क्रिबलिंग है। दीज आर ऑल फॉर द फाइन मोटर स्किल्स एक्टिविटीज। देन सॉर्टिंग एक्टिविटी है। आजकल के बच्चों में कंसंट्रेशन का बहुत ज्यादा लैकिंग है। मतलब बच्चे जो है वो ज्यादा देर तक एक जगह पे नहीं बैठ पाए। उनका माइंड इज कंटिन्यूअसली, लाइक वो जो है ना कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ सोचते हैं। उनके दिमाग में एक के बाद एक ऐसे बहुत सारी चीजें चलती रहती है। तो उन्हें एक जगह पे कैसे लाना है, उनका कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाना है, तो उसके लिए वी आर टेकिंग सच स्मॉल स्मॉल एक्टिविटीज। तो ये जो है हम लोग पेरेंट्स को भी घर पे बोलते हैं कि आप घर पे भी ये सारी एक्टिविटीज कैरी आउट करो। देन फॉर फिजिकल डेवलपमेंट, फॉर ग्रॉस मोटर स्किल्स, वी आर टेकिंग द बॉल एक्टिविटीज, लाइक आपको बॉल थ्रो करना है, कैच करना है, देन स्टेयर्स के ऊपर चढ़ो, स्टेयर्स देन चढ़ना है, उतरना है। बहुत सारे बच्चे दे कांट इवन स्टेयर अप, मतलब उनको चढ़ने भी नहीं आता है बच्चों को। तो उनको वो कैसे बैलेंस करना है खुद को। देन वन लेग बैलेंसिंग है। बहुत सारी उसमें एक्टिविटीज आती है फिजिकल में। देन सेंसरी जो डेवलपमेंट होती है उसके लिए आपको आंखें बंद करके बहुत सारी एक्टिविटीज कैरी आउट की जाती है। आफ्टर दैट वी हैव सम सेंसरी एक्टिविटीज विद द मड। देन रंगोली है, मड है, मड जो अपना ये रहता है प्लांटेशन है। बच्चे उसको भी हाथ लगाने के लिए नहीं बोलते कि शी ये बहुत गंदा है, मैंने, दे आर क्राइंग, दे आर स्टार्ट क्राइंग, कि उन्हें वो पता ही नहीं है कि यार ये मिट्टी को हाथ लगाना है। उनको जब, क्योंकि ये घर से आता है सब कुछ, पेरेंट्स क्या बोलते हैं, शी शी वहां पे नहीं जाने आपको, आपके हाथ गंदे हो जाएंगे। तो उनको वो हमेशा के लिए उनके माइंड इट इज फिक्स्ड हो जाता है कि नो, we don't have to touch it because there is germs and our hands will be getting like brown, और कुछ तो भी हो जाएगा अपने हाथों को। तो वो सच में ऐसे रोने लगते हैं, और हमें इतना मतलब कभी हंसी भी आती है। और ऐसे मतलब बच्चों के ये सारी चीजें बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ये मतलब मैटर करता है। क्योंकि जब तक उन्हें वो सेंसेशन नहीं पता होता है कि अगर हम लोग कोई सॉइल को या तो कोई मड को जब टच करते हैं तो क्या फीलिंग आती है, वो बच्चों को समझनी चाहिए। उससे भी उनका फाइन मोटर स्किल्स जो है वो डेवलप होता है। देयर आर लॉट ऑफ एक्टिविटीज। Great. So actually, when parents are planning to send their kids to play school, so basically, what are the factors they need to consider and what they should know before when they are sending their kids to play school? Okay, so first of all there is a age criteria before sending this school. एज क्राइटेरिया जो है इट्स 2 years एंड अबव, और 2.5 years एंड अबव। क्योंकि तभी ही बच्चे जो है 2 years में सम किड्स दे कैंट स्पीक इवन अ सेंटेंस प्रॉपरली। तो वो जो एज है it is also not a proper age, but some kids are that much mature, that much they have a their language skills more better, so वो बच्चे बोल पाते हैं, they are communicating well in 2 years also। जो मतलब mostly we have observed that the girls are speaking very clearly in 2 years also, but the boys जो कोई बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं,
They can't speak a whole sentence properly in 2 years. So 2.5 is the best age to admit your kid in the preschool. सो इसमें भी अभी पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि अपना बच्चा, उसका जो बिहेवियर है वो बहुत ही ज्यादा अलग तो नहीं है. लाइक अभी वो जो पूरा पार्ट है, इट इज कम्स अंडर द स्पेशली डिसेबल और स्पेशली चैलेंज्ड किड्स, वी कैन से. मतलब जो स्पेशल नीड वाले बच्चे रहते हैं वो एक पूरा अलग पार्ट आता है. तो फिर अपने बच्चों को ये तो कुछ जरूरत नहीं है, उसका बिहेवियर बहुत ही ज्यादा तो अलग नहीं है, ये पेरेंट्स को पहले पता करना चाहिए. अपना बच्चा कम्युनिकेट कर पाएगा, अपना बच्चा जो उसको चाहिए, मतलब कोई चीज चाहिए तो वो उसे एटलीस्ट ही शुड लाइक उसने एक्शन विद एक्शन तो भी उसने वो टीचर्स के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए. ये सारी जो है बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो पेरेंट्स को पता होनी चाहिए अपने बच्चे के बारे में. देन सेकंड थिंग कि आजकल बहुत एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है बहुत सारे मॉम्स का कि बच्चे जब तक प्री स्कूल में आते हैं हमारे पास, तब तक वो लोग मिक्सर में ग्राइंड किया हुआ फूड ही उनको देते हैं, कि पूरा ग्राइंड करके ही बच्चों को खिलाते हैं. तो बच्चे को यहाँ पे आने के बाद वो कुछ भी नहीं खा पाता है, और यहाँ पे हम लोग ग्राइंड करके तो दे ही नहीं सकते हैं बच्चों को प्री स्कूल्स में. मिक्सर में पूरा वो लिक्विड फूड ग्राइंड करके, रोटी वगैरह पूरा ग्राइंड करके ही देते हैं. तो पेरेंट्स को ये जो हैबिट है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये उनको चेंज करनी चाहिए कि अगर अपना बच्चा 6 महीने के बाद, आफ्टर 1 ईयर, वो स्कूल में जाने वाला है, प्ले स्कूल में या प्री स्कूल में जाने वाला है, तो उन्होंने ये जो हैबिट है, ईटिंग हैबिट, वो यहाँ पे चेंज करनी चाहिए. सो दीज आर द बेसिक नीड्स. देन टॉयलेट ट्रेनिंग है, टॉयलेट ट्रेनिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, क्योंकि बच्चों को कितना भी हम लोग यहाँ पे तो वी आर गिविंग देम एवरीथिंग, बट अगर इफ इट कम्स फ्रॉम द होम, देन वो बच्चे को सेटल डाउन होने में और टीचर को भी उसके साथ कम्युनिकेट करने में ये सब सारी जो चीजें हैं, इट्स गोइंग इजी फॉर अस. आई सी. अभी तक जो भी आपने बताया वो सब कुछ बच्चों को कैसे सिखाना है. मेरा सवाल ऐसा है कि what do you need to learn and how do you change or develop your attitude कि आप बच्चों का ख्याल रख सके और आप पे लोग भरोसा कर सके अपने बच्चों को भेजने के लिए. बिकॉज एवरीबडी नोज जब बच्चे गोदी में रहते हैं, आई मीन parents don't want to get rid of them so easily. Not even get rid of them, it's a wrong word. They do not want to live without them for, Yes. I think, 5-6 years. After that, kids become nuisance and they start becoming naughty, but before that they are cute. So what attitude is required, or how do you develop it? सी ये जो है कि आई डोंट नो, बिकॉज मैंने भी सीखा ही है, बट somewhere it is naturally from us, because everyone can't be a preschool teacher, everyone can't bear that noise and everything that मतलब जो बच्चों की शैतानी है, everyone can't bear it. So वो जो है it comes from the natural. और बाकी जो है विदाउट लाइक अगर कोई मतलब जो है कि वो ये फील्ड में आना ही चाहता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्टली तो इसमें सारी यही है, फीमेल्स आर वर्किंग विद द किड्स, बिकॉज मेल जो रहते हैं दे कांट बियर ऑल दिस थिंग्स. मतलब बच्चों का इतना चिल्लाना, बच्चों की शैतानी, बच्चों की नीड्स, जो मेल्स है उससे ज्यादा फीमेल्स ही ये सब चीजें जानती है. तो ये जानने के लिए हमें भी उसके लिए बहुत सारे वर्कशॉप्स करने पड़े हैं. तो उसमें बहुत सारी चीजें हमें भी सिखाई जाती है कि कंटिन्यूअसली ये जो पैटर्न है जो अपने स्कूलिंग का था, वो पैटर्न अगर आप रखोगे तो किड्स विल गेट बोर्ड. तो हमें भी अलग अलग तरीके से ये सब एटीट्यूड है, ये जो टीचिंग वे है, चेंज करना पड़ता है. अभी जो एज अ मदर आई एम वेरी स्ट्रिक्ट विथ माई सन, बट एज माई स्टूडेंट्स आई एम नॉट दैट मच स्ट्रिक्ट, बिकॉज मैं अगर उनके साथ उतना ज्यादा स्ट्रिक्ट रहूंगी तो दे डोंट लाइक टू कम टू द स्कूल. तो फिर मुझे उनको उन्हीं के साथ, मतलब उनके जैसे मुझे भी 3 years ओल्ड के तरह ही बिहेव करना पड़ता है. देन एंड देन दे लव टू कम टू द स्कूल. मतलब कैसे होता है, जब हम लोग बच्चों के साथ
उनके साथ खेलेंगे। अगर हम लोग सिर्फ इंस्ट्रक्शन देंगे जंपिंग करो, ये करो, वो नहीं करेंगे, उनके साथ हमें भी करना पड़ता है। अगर इफ आई सेड कि 50 टाइम्स आपको जंप करना है, इफ टीचर सेड कि आपको 20 टाइम्स हैंड रोलिंग ये करना है, वेव हैंड करना है वगैरह, तो बच्चे नहीं करते हैं। दे लिटरली मतलब ऐसे इधर उधर देखते हैं, कोई जाके बैठता है, कोई कुछ तो भी टॉयज के साथ खेलने लगता है। If the teacher is energetic, if teacher is doing same activity for same time, then kid follow the teacher, unless and until the kid is not going to follow the teacher. तो ये जो एटीट्यूड है, ये टीचर को भी ट्रेनिंग लेना पड़ता है और नेचुरली भी वो रहना पड़ता है। देन टीचर के पास बहुत ज्यादा सॉफ्टनेस चाहिए बच्चों के साथ, उसको मतलब एकदम हार्ड लैंग्वेज नहीं चाहिए, कुछ भी हो बच्चों के ऊपर हमें मतलब चिल्लाना तो दूर की ही बात है, लेकिन उनको जो है एक माँ की जैसे ही प्यार हमें देना पड़ता है। तो ये ऑटोमेटिकली मतलब ये फील्ड में आने के बाद वो जो इमोशंस रहता है बच्चों का, उनके साथ रह रहे के हम लोग भी वैसे ही हो जाते हैं। सो उसके लिए बहुत भी ज्यादा हमें कुछ ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, Hmm. बिकॉज इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें पता है कि हमें बहुत ज्यादा एक फ्लावर के साथ हमें डील करना है, सो वी हैव टू डील विद द फ्लावर वेरी सेंसिटिवली। I mean, I know, I can imagine it's a tough job. यस। I can play with kids. I cannot take care of them. So I know I'm. uh, but while you were talking and telling me and Abhimanyu how you do all these things and how to take care of kids, the basic thing which I understood is that आप बच्चों के साथ या जैसा आपने बोला इट कम्स इंटरनली कि बच्चों के साथ कैसे बिहेव करना है, उनका कैसे टेक केयर करना है। बट आफ्टर 2020 सब कुछ लॉकडाउन में चला गया, सारे बच्चे घर पहुंच गए। यस। उसके बाद क्या हुआ? आई मीन आपने फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे प्लान किया, क्या चेंजेस किया, और बच्चों से दूर रह के उनको सेम चीज सिखाना, हाउ डिफिकल्ट और इजी वाज इट, एंड क्या नया करना पड़ा? दिस सिचुएशन, ये जो है, ये फॉर प्री स्कूलर्स इट्स अ वेरी 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 टफ जॉब। मतलब फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड फ्रॉम टू 10th और सेकेंड से लेके 10th तक के बच्चों को पढ़ाना इट्स क्वाइट इजी जॉब। बट ये बच्चों के साथ 3 years के बच्चों के साथ या 4 years के बच्चों के साथ टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस जो है, मतलब वो लास्ट ईयर तो इट वाज कम्प्लीटली लाइक एवरीवन इज, मतलब क्या करना है। हम लोग तो दिन दिन भर एक दूसरे को कॉल करते थे प्री स्कूलर्स कि मैम कैसे करना है, क्या करना है, हम खुद के वीडियो बनाए क्या, बच्चों को पोस्ट करेंगे क्या, नहीं वो तो वैसे भी नहीं सिखाएंगे। लॉट ऑफ डिस्कशन वाज देयर। और फिर ऐसे पता चला कि नहीं, बच्चों के साथ लाइव जाएंगे, क्योंकि वी डोंट नो व्हेन द स्कूल इज गोइंग टू ओपन, वी डोंट नो व्हाट इज नेक्स्ट। सो फॉर द सेम वो सब कंसिडर करते हुए हम लोगों ने फिर ये रखा कि नहीं, और तभी बहुत सारे रूल्स भी आए थे कि बच्चों का जो स्क्रीन टाइम है फ्रॉम गवर्नमेंट, देयर आर लॉट ऑफ रूल्स कि बच्चों का स्क्रीन टाइम है, आप 30 मिनट्स के ऊपर नहीं ले सकते हो, आप छोटे बच्चों को ऑनलाइन में ही नहीं ला सकते हो। बाप रे, मतलब हम लोग तो ऐसे सोच में पड़ गए थे कि अपने बच्चों का क्या होगा। तो उस टाइम पे हम लोगों ने पहले तो ये डिसाइड किया था कि हम लोग खुद से ही वीडियोस बनाएंगे एंड देन विल पोस्ट इट। बट वो भी सोच नहीं लिया, तो पेरेंट्स इतना उसको रेगुलरली सब कुछ देखेंगे, तो वो भी पार्ट नहीं देखते हैं पेरेंट्स, दे आर निग्लेक्टिंग, क्योंकि एवरीवन इज अंडर टेंशन, अंडर स्ट्रेस, बिकॉज हर एक का जॉब कुछ मतलब बहुत सारी चीजें हुई थी उस बीच में। तो फिर लाइव आने का सोचा, तो लाइव भी फिर बच्चे बैठेंगे कैसे, दैट इज द मेन पॉइंट। तो बच्चों को कैसे बिठाना है, तो वहां से हम लोगों ने फिर क्या किया कि इन समर, इन मई मंथ, अप्रैल और मई, मार्च में लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, फिर अप्रैल में हम लोगों ने इमीडिएट वी हैव केम अप विथ डिफरेंट वर्कशॉप्स, ऑनलाइन वर्कशॉप। फर्स्ट वी हैव टेक द फैमिली वर्कशॉप। हम लोगों ने एक फैमिली वर्कशॉप लिया जिसमें मम्मी पापा एंड द चिल्ड्रंस वर प्लेइंग द रोल।
मतलब हम लोग क्या करते थे, उन्हें मॉर्निंग में एक एक्टिविटी देते थे, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, और फिर वो एक्टिविटी आपको होल डे परफॉर्म करनी है, एंड यू हैव टू पोस्ट द वीडियोस एंड द फोटोज परफॉर्मिंग द एक्टिविटी, वो आपको वो ग्रुप में पोस्ट करना था। और एक्टिविटी इज टोटली अ कंपटीशन बेस्ड, उसमें कंपटीशन रखा था, फिर इतने सारे लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। फिर हम लोगों ने इस तरीके से ऑनलाइन में आने का एक फर्स्ट स्टेप था हमारा। फिर वो एक्टिविटी जो था उसमें व्हाट्सएप पे मॉर्निंग में देते थे, इवनिंग में सब आ जाता था, देन उस एक्टिविटी का एक विनर निकाला जाता था। तो बच्चों को एक वो घर में बैठते ही वो लोग ऐसे ये हो जाते थे, वाह अभी नेक्स्ट डे क्या पोस्ट करने वाले हैं मैम, तो नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है, तो उनमें वो जो क्यूरियोसिटी है वो बढ़ती गई। फिर हम लोग ये जो 15 डेज का पूरा वर्कशॉप था, तो वो 15 डेज में हम लोगों ने बीच बीच में 3 या 4 लाइव सेशंस रखे थे कि आपको सबको परफॉर्म करना है। लाइक डांस था, देन पेपर डांस था, देन योगा था, फिर बच्चों के लिए कुछ अलग एक्टिविटीज थी, एक्सरसाइजेस थे, वो सारे फिर हम लोगों ने तभी ऑनलाइन आए। फिर बच्चों को भी उससे क्या हुआ, एक इंट्रोडक्शन हुआ कि ये जो है लर्निंग जो है वहां से उनका स्टार्ट हुआ थ्रू एक्टिविटीज। मतलब जो भी हमें करना है बच्चों के साथ वो एक्टिविटी से ही स्टार्ट करना पड़ता है। फिर हम लोगों ने वो वर्कशॉप लिया, बाद में 10 डेज का एक समर वर्कशॉप था। तो ऐसे वर्कशॉप्स लेते लेते हम लोगों ने फिर स्कूल ही पूरा ऑनलाइन में कन्वर्ट किया। तो उसमें भी बहुत सारे जो है प्लेटफॉर्म थे कि आपको ऐप बनाना है, आपको अटेंडेंस वगैरह, जो एवरीथिंग शुड बी ऑनलाइन। तो बच्चों का होमवर्क कैसे पोस्ट करेंगे, उनका अटेंडेंस कैसे लेंगे, तो फिर वो सब हम लोगों ने उसको पूरा जो है कन्वर्ट ऑनलाइन में तो किया ही। बट जो हमें सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए वो आज तक नहीं है, क्योंकि 1 to 1 जो सामने जो बच्चे रहते हैं तभी पढ़ाने का जो माहौल रहता है वो कभी नहीं आ सकता है ऑनलाइन में। ऑनलाइन वो उसकी जगह ले ही नहीं पाएगा। तो फिर भी बिकॉज क्या हो रहा है, अगर इफ वी स्टॉप आर दैट लर्निंग टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, तो बच्चों में इतना चेंज आया। लास्ट ईयर जिन लोगों ने, फिर हम लोगों ने सबको कॉल किए, पेरेंट्स बोल रहे थे हमें एडमिशन नहीं लेना है, वो तो क्या 3 ही साल का है, वी डोंट हैव टू टेक द एडमिशन, ऑनलाइन में क्या पढ़ेगा बेटा, हमारे तो पैसे। हम लोगों ने फीस बहुत ज्यादा डिडक्ट कर दी, बहुत ज्यादा। इवन मतलब उसमें नो प्रॉफिट एंड मतलब प्रॉफिट कुछ भी नहीं था। तो फिर उस टाइम पे क्या हुआ, पेरेंट्स का इतना हम लोग वी आर मतलब हमारा जो इंटेंशन था कि बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए, बट पेरेंट्स का व्यू कुछ अलग ही था कि हमें पे करना है, खुद को ही बाजू में बिठाना है, खुद को ही बच्चे को सिखाना है। सो वी आर नॉट इंटरेस्टेड। तो 1 साल पूरा बच्चों का, कुछ कुछ बच्चों के वैसे गए हैं, लेकिन अभी ये साल का सिनारियो बहुत अलग है। दिस ईयर, ये जो एकेडमिक ईयर है, उसमें क्या हुआ, जिन बच्चों ने लास्ट ईयर कुछ भी नहीं किया वो बच्चे अभी ज्यादा हमें यहाँ पे अलग दिखाई पड़े। मतलब उनको, उनका पूरा 1 साल जाने के बाद वो डायरेक्टली नेक्स्ट क्लास में जब आ रहे हैं उनको कुछ भी नहीं आ रहा है। पेरेंट्स अभी उससे डबल ज्यादा पे करने को रेडी है, बट वी आर हेल्पलेस, बिकॉज एक एज, पर्टिकुलर एज रहता है। फिर उन्हें अभी सभी बच्चों का, मोस्ट ऑफ द किड्स, मतलब जो बच्चा 6 साल या 6.5 साल का फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाना चाहिए, वो अभी 7 या 7.5 का जाने वाला है। बिकॉज ऑलमोस्ट उनका 1 ईयर वो गया है। जो बच्चे करते हैं सिंसियरली, दे आर मतलब फ्रॉम बर्थ दे आर सिंसियर, सो वो बच्चों का हो रहा है अच्छे से। बट जो जिनको स्पेशल नीड्स चाहिए, जिनको स्पेशल अटेंशन चाहिए, जिनका ग्रास्पिंग स्लो है, उनके लिए इट्स वेरी टफ जॉब। तो लाइक वो बच्चों के साथ डील करना ऑनलाइन में रियली वेरी वेरी टफ जॉब। Yeah, that's why I thought of talking to you because मैं सोच रहा था कि uh, इतना बड़ा होने के बाद भी इतने सारे एडल्ट्स, बहुत सारा डिप्रेशन बढ़ गया आज वर्ल्ड में बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक। कई लोगों की जॉब चले गई, लोग फ्रेंड से नहीं मिल पा रहे, फैमिली से नहीं मिल पा रहे, पेरेंट्स से नहीं मिल पा रहे। बट जो बच्चे आज इस एज में है कि उनको कल आगे बढ़ना है, और जो वर्ल्ड उन लोग ने अभी देखा है, इसके पहले का वर्ल्ड उनको मालूम ही नहीं है क्या है, लेकिन अभी उनको सब कुछ लगता है कि दिस इज एवरीथिंग इज ऑनलाइन नाउ। What do you think? How will it hamper them in future?
because I don't think that they will be very comfortable with people around them physically, strangers for that matter. What do you think? ऑनलाइन का जो है, जिन्होंने आज तक स्कूल ही नहीं देखा है, जो बच्चे मतलब अभी लास्ट ईयर जिनका एडमिशन होना चाहिए था, वो बच्चे आए ही नहीं स्कूल में, मतलब उनको स्कूल पता ही नहीं है। तो उन बच्चों का क्या हो रहा है कि उनका जो बिहेवियर है, देन उनकी ईटिंग हैबिट से पूरा पूरा चेंज हो गया है। तो फिर जब वो यहाँ पे आएंगे तो दे विल रिएक्ट लाइक कि ये क्या हो रहा है, मतलब वो जल्दी एडॉप्ट नहीं कर पाएंगे ये सब चीजें। अभी कोई कोई घर में है कि दो दो बच्चे हैं, लाइक एल्डर एंड यंगर वन। तो जो यंगर वन है वो क्या करता है कि उसकी दीदी है या भैया है, उसका देख देख के उसको उसको ऐसे लगता है यार लास्ट ईयर से इसका ऑनलाइन चालू है, मुझे तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। So they are trying for the online sessions only, but they don't want to come to the school. If we as a educator, as a preschool teacher, we are asking them, do you like to come to the school? They are saying no. They just want to do the online school. तो ये जो एडॉप्शन का जो पार्ट है, इट मतलब ये ज्यादा ही अफेक्ट करने वाला है। और ऑनलाइन का जो है मतलब स्क्रीन टाइम बच्चों का जो है वो बढ़ गया है। देन उनको बाहर जाने के लिए नहीं मिल रहा है, उनकी जो बच्चों में क्या बोल सकते हैं हम लोग, चिड़चिड़ापन, या तो फिर उनका जो बिहेवियर है। कोई बच्चे तो उल्टा मतलब दे आर स्टार्टिंग विद देमसेल्व्स, मतलब बच्चे खुद से ही बहुत ज्यादा टॉक करने लग गए हैं रादर देन टॉकिंग विद द पेरेंट्स। तो ये सारे जो उनके चेंजेस है वो यहाँ पे आने के बाद मतलब उनको भी अडॉप्ट करने के बाद करने के लिए, और हमें भी वो सब ट्रांसफॉर्म करने के लिए बहुत ज्यादा तकलीफ होने वाली है। बट वी आर रेडी, हमारा जॉब ही वो है, तो वो सब कुछ हम लोग तो कर ही लेंगे। बट इट्स अ टफ जॉब। Yeah, I mean, you have used this word screen time a lot. और जब हम छोटे थे हमको तो टीवी देखने नहीं मिलता था, पढ़ाई करो नहीं तो खेलो, टीवी में कुछ नहीं, इडियट बॉक्स आई मीन। यस, बट नाउ TV has been shifted to a mobile, I mean 6-inch, 5-inch mobile, and it is necessary to grow up in the world. And in future, I mean, without mobile, you cannot do anything. I यस। mean, everything requires how to operate a mobile. So, do these preschoolers need to learn how to use a mobile? प्री स्कूलर्स मतलब बच्चों को आना चाहिए। Hmm. नो, अभी ये जो एज है उनको ये नहीं आना चाहिए, बिकॉज इट इज रिस्की फॉर देम। बच्चे जो है उनको पता नहीं व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, व्हाट इज गुड फॉर देम एंड व्हाट इज बैड फॉर देम। सो दे गो इन, दे क्लिक एनीवेयर, they click to the any ad or any website or anything, so it's obviously it's not good for the kids. मैंने इसलिए पूछा क्योंकि मैंने बहुत सारे छोटे बच्चे देखे जिनको कुछ नहीं आता, लेकिन मोबाइल हाथ में दे तो सब कुछ आ जाता है, व्हाट्सएप भी कर लेते पर्टिकुलरली हैं। यूट्यूब, यूट्यूब हाँ, हाँ। यूट्यूब तो 2 साल का बच्चा भी आज ऑपरेट कर रहा है। जस्ट गिव देम अ अनलॉक मोबाइल, दे मतलब उनको जो है ना, बच्चे कैसे सीखते हैं आपको पता है, विजुअली वो ज्यादा पढ़ते हैं, मतलब रादर देन जो हम लोग उनको ऑडियो, या तो ऑडियो लर्निंग भी है, बट जो विजुअली ज्यादा देखते हैं ना बच्चे, ये जो डार्क कलर्स रहते हैं या तो फिर ब्रॉड वाले सेंटेंसेस रहते हैं, वो उनके माइंड में एकदम फिट रहते हैं। तो यूट्यूब का जो सिंबल है इट इज इन रेड कलर, तो हम्म। बच्चों पे उसने इतना ज्यादा अफेक्ट किया है कि आप उनको अनलॉक मोबाइल भी हाथ में दे दोगे तो बराबर सारे आपके जो ये है स्क्रीन में, उस पे बराबर जाके वो सर्च करता है और वहीं पे क्लिक करता है बच्चा, रादर देन गोइंग एनीवेयर एल्स। तो बट यूट्यूब में भी बहुत सारी एड्स आती है, तो ही विल और शी विल क्लिक एनीवेयर। So it's not good to give mobile for the kids. So instead of giving them a mobile, you can give them a physical activity, involve your kid in kitchen activities. There are so many activities कि arrange the utensils in a proper rack or proper मतलब जो भी है, like dish है तो आपको dish के compartment में डालना है, तो involve your kid likewise। तो You are उसका ना talking just like my mom. काम कराने का, मजे नहीं नहीं, करने नॉट देने लाइक दैट, का। काम कराने का नहीं है,
बच्चे इस तरीके से सीखते हैं. द सॉर्टिंग एक्टिविटी इज गोइंग लाइक दिस. मतलब आप बच्चों को इस तरीके से सॉर्टिंग एक्टिविटी सिखाते हो Mm. कि स्पून से एक कंपार्टमेंट में जाना चाहिए, एक ट्रॉली में जाना चाहिए, बाउल से वो एक ट्रॉली में जाना चाहिए. तो बच्चे को ही और शी विल रिकॉग्नाइज कि नो दिस इज स्पून, इसका शेप अलग है, इसका साइज अलग है, इसका ये जो है कि मतलब कहाँ रखना है. तो मतलब ये भी एक प्रॉपर एक एक्टिविटी है. It's not like we are giving them a work. And other thing is मतलब उनको उनकी चीजें कैसी अरेंज करनी है वो, if we don't teach them from 3 years or from 2 years, तो वो बाद में तो कुछ भी नहीं करने वाले, कितना भी बोलो वो नहीं करते. So it's better if you give them a training since childhood, तो वो बच्चे अच्छे से टेक करते हैं. तो अभी आपको फ्यूचर क्या दिखता है? When do you think that schools will start normally like it was in 2019? And what else have you prepared for that? Because I have heard that there are many places where they are talking about कि hybrid schooling होगा, 50% online, 50% offline. So how do you see the future, and do you get any information from the government about it? We had information like कि सितंबर एंड तक होगा, बट नॉट फॉर प्री प्राइमरी, इट्स फॉर हायर सेकेंडरी स्कूल्स. सो सितंबर टिल द 30th सितंबर इट इज गोइंग टू स्टार्ट. बट प्री स्कूलर्स के लिए अभी तक तो कुछ भी गवर्नमेंट का गाइडलाइन नहीं आया है. और हाइब्रिड स्कूलिंग अगर देखा जाए तो उसमें भी स्कूल्स जो है लाइक लास्ट टाइम भी बीच में कुछ फॉर 15 days और फॉर 1 month the school has started like last year I think. तो उन्होंने तभी भी यही फैसिलिटी प्रोवाइड किया था फॉर हायर सेकेंडरी कि आपको ऑनलाइन रखना है तो यू कंटिन्यू विद द ऑनलाइन, एंड इफ यू डोंट वांट यू कंटिन्यू देन यू कम टू द स्कूल एंड देन लर्न. लेकिन ये हाइब्रिड जो है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, ये दोनों कैरीड आउट करना एक साथ, इट्स डिफिकल्ट अगेन, अ टफ जॉब फॉर द स्कूल, बिकॉज स्कूल को दोनों का रिकॉर्ड रखना है. तो आई डोंट थिंक कि ये हाइब्रिड जो है, हाइब्रिड वाला पैटर्न, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क प्रॉपरली. और पेरेंट्स का भी ये है कि बच्चे कब जल्दी अभी स्कूल में जाएंगे. एवरीवन इज वेटिंग फॉर ओपन दिस स्कूल. इवन जो हमारे प्री स्कूल के बच्चे हैं वो तो कितने छोटे हैं, 3 years, 2 years, 2.5. उनके भी पेरेंट्स हमें रिक्वेस्ट करते हैं कि मैम प्लीज ओपन दिस स्कूल. बट अनलेस एंड अनटिल वी डोंट हैव एनी गवर्नमेंट गाइडलाइंस और देन till we can't open it. So everyone is ready, so surely it is going to offline, I think so. एंड जब भी ये ऑफलाइन स्टार्ट होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कांट हैमर देम लाइक बच्चों बैठो पहले के जैसे, ऐसे कुछ भी नहीं होने वाला है. फॉर फर्स्ट 2 months आई थिंक, यस, फर्स्ट 2 months तो हमें उनको फिजिकली पूरा गेम्स और प्ले और ये सारी चीजों में ही लाना पड़ेगा. जो भी है बच्चों को ग्राउंड लेवल, ग्राउंड में अभी ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के स्टूडेंट्स है उनको भी ग्राउंड में ही पूरा खेलने के लिए लेके जाना पड़ेगा. उनको ग्राउंड में आप क्रिकेट सिखाओ, कुछ भी, ये सारी चीजें करने के बाद ही ये बच्चे पूरे ट्रैक पे आने वाले हैं. बिकॉज उनका जो माइंड सेट है पूरा इट्स टोटली चेंज. उनको फिजिकली एक्टिविटीज कुछ भी नहीं मिल रही है बच्चों को. तो फिर बट स्कूल जो मोस्ट ऑफ द स्कूल्स आर, मतलब हमारा तो भी यही ये है, वी हैव डिसाइडेड व्हेनेवर वी स्टार्ट द स्कूल वी हैव स्टार्ट विद फिजिकल एक्टिविटीज मोर एंड मोर. बच्चों को पार्किंग में लेके जाओ, बहुत सारा उनको वहीं पे जितना एक्सरसाइज हो सके उतना करवाओ, फिर उन्हें हमें ट्रैक पे लाना है. Hmm. I can imagine it will be a difficult job for you and also for kids. I think Yes, only the happiest people will be the parents. They will get some respite from it them. is. Yes. So, what else you can tell to our viewers? Because, as I said, we do not know anything about preschool. We never went, and Yes. uh, So most of the parents are thinking that the preschool is not needed, not required because हमारा बच्चा तो बहुत छोटा है. But this is not the case. Preschool for nowadays it plays a very, very, very important role to develop your kid in all aspects.
like as I said before also, physical, then intellectual, then social, then your emotional, everything is developed over here. So I request all the parents कि जो भी parents ऐसे सोचते हैं कि प्री स्कूल में जाके बच्चा कुछ बड़ा तीर नहीं मारता है, तो इट्स नॉट द केस. तो बच्चों को आपको वहां पे डालना एक बहुत जरूरी है. दिस इज अ लाइक वन स्टेप बिफोर, मतलब जो बच्चा आपका फर्स्ट या मतलब प्रॉपर स्कूलिंग के लिए जाने वाले बच्चों को, वी आर प्रिपेयरिंग द किड्स टू गो फॉर बिग स्कूल्स. मतलब हम लोग उनको पूरी ट्रेनिंग यहाँ पे देते हैं, तो बच्चों को, बच्चे भी आगे जाके दे मतलब कंफ्यूज नहीं होते हैं. they can tackle, they can adjust with the bigger schools easily, because they have in bigger schools, the many schools have I think 30 plus kids in one class. तो एक क्लास में 30 प्लस स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ कुछ स्कूल में तो 45 होते हैं. तो मतलब ये सारी क्राउड में बच्चों को अचानक अगर आप डाल दोगे, तो उसके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है कि कैसे बिहेव करेंगे अभी हम लोग. तो प्री स्कूल्स आर फॉर दैट पर्पस, कि प्री स्कूल में बच्चों को वो ही सिखाया जाता है, वहां से उनका ये सारा जो है हैबिट्स डेवलप होता है. सो लाइकवाइज, सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू admit your kid to the preschool. Then next part is the online schooling. तो online जो भी parents को ऐसे लगता है कि it is not needed, not required, not beneficial, so it's not the case, because we have gone through it and we have find so many kids कि उनका track literally they have changed their track, they even don't know, like जो बच्चों को जितना आता था वो भी भूल गए हैं बच्चे. सो ऑनलाइन में एटलीस्ट हम लोग आपको जो भी डिलीवर कर रहे हैं, बच्चा अगर नहीं 100% एडॉप्ट कर सकता है, नहीं 100% ग्रास्प कर सकता है, बट 20% तो कुछ ना कुछ सीखेगा. नॉट वी आर एक्सपेक्टिंग 100%, बच्चा 100% नहीं सीखेगा, लेकिन 20% डेली कुछ तो उसके दिमाग में जाएगा, कुछ तो वो देखेगा. मतलब पूरा क्लियर होने से अच्छा इट्स बेटर टू हैव समथिंग विथ यू. So I request all the parents, those who are thinking that online is not good for our kids, not beneficial for us, and it's a money wasting, it's not the thing. कुछ नहीं से कुछ तो बेहतर है basically. Yes, yes. Last but not the least, I mean, I will come back directly to you. I know sometimes it's difficult for women, especially in India, to start their own company and own job. So tell us about that. How much support do you get from your family, your husband, and so on? Yes. I got 100% support from my family. Like when we think about that business, as I said earlier, we have so many options in front of me, like ice cream parlors and all, food industry. I'm a best cook, so that's why I'm thinking to start a hotel industry also. But when I started this schooling business, like preschool, so initially we don't know any idea about what is branding, what is a logo, what is registration. Everything is very very new to us. So in that case, my family has given a very very best support for me, especially my husband, because he has that impact of entrepreneur. So he is lot more interested for this business. सो हम लोगों को, मुझे तो आज भी वो दिन याद है कि स्कूल का नाम रखेंगे क्या. पहले तो वो शुरुआत थी हमारी कि हम लोग स्कूल को क्या नाम देंगे. सो अगेन गूगल बाबा, देन वी हैव स्टार्टेड विद द गूगल कि क्या नाम दे, ये वो एवरीथिंग. फिर हमें तो कुछ अलग ही चाहिए था, एबीसी, चलो एबीसी देते हैं. लेकिन एबीसी क्या है, तो अगेन हम लोगों ने सर्च किया कि एबीसी प्ले स्कूल की ये जो नाम है, तो उसकी भी इंडिया में स्कूल्स है बट उतनी ज्यादा नहीं है. तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि एबीसी इज द फाइनल नेम. हम लोगों ने 10 या 15 नेम्स निकाले थे, तो उसमें से एबीसी, बिकॉज
फिलोसॉफी बिहाइंड उसके पीछे भी एक ये है कि अराउंड ब्यूटीफुल कल्चर, ये तो टैगलाइन उसके बाद हम लोगों ने फाइनल किया, बट बिफोर दैट कि एबीसी, जो बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं वो प्री स्कूल का नाम ठीक से प्रोनाउंस नहीं करते, सो वी डोंट वांट दैट कि हमारे प्री स्कूल का नाम हर पेरेंट्स ने अच्छे से प्रोनाउंस करना चाहिए। मतलब कैसे होता है कि कोई कुछ भी अलग तरीके से प्रोनाउंस होने से बेटर है कि एबीसी इज द easiest to pronounce all for all everyone, even kid can take the school names very easily, मतलब बच्चे भी जो है हमारे वो एकदम easily बोलते हैं आई एम गोइंग टू द एबीसी प्ले स्कूल, तो उनके लिए भी इजी है और हमारे लिए भी और पेरेंट्स के लिए, दैट्स व्हाई वी हैव डिसाइडेड दिस नेम। और अगेन जब ये हमारा बिजनेस चालू हुआ तो आई लिटरली स्टार्ट माय बिजनेस विथ 30,000, 28 to 30,000 इन्वेस्टमेंट, बिकॉज हमारा खुद का ही स्पेस था, वी आर लिविंग इन अ बंगलो, सो बंगलो का जो ग्राउंड फ्लोर था तो वो हम लोगों ने उसके 1 BHK एक फ्लैट था उसी में शुरुआत किया उसको। पहले तो ये हमारा सब नाम वगैरह फाइनल होने के बाद वी हैव विजिटेड 2 or 3 प्री लाइक जो मेरे जैसे और भी थे प्री स्कूलर्स, तो मैं उनके पास गई, उनसे कुछ मैंने ये लिया इनपुट्स लिया कि क्या क्या करना चाहिए, बिकॉज आई एम टोटली न्यू फॉर दिस, आई एम फ्रॉम इंजीनियरिंग, मतलब मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में से थी और फिर इसमें क्या क्या करना है, क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, फिर वो वहां से डेटा कलेक्शन किया, देन इन 1 BHK फ्लैट वी हैव स्टार्टेड द स्कूल जस्ट विद द 30,000 इन्वेस्टमेंट। Then we have painted the school because painting is the best attraction for the kids, तो फिर वो पहली जरूरत थी, उसके सिवा वो प्री स्कूल का लुक ही आता नहीं है, तो पेंटिंग सबसे पहले हम लोगों ने पेंटिंग किया। देन थोड़े से ही टॉयज थे, फर्स्ट ईयर तो वी हैव वेरी लेस टॉयज विथ अस, देन फिर एवरी ईयर वी हैव make changes in our school, like फिर next year पार्किंग जो स्लॉट था बच्चों को खेलने के लिए, सो इट वाज लाइक थोड़ा सा रफ था, अगर बच्चे गिरेंगे तो उनको लगेगा, ये फिर से नहीं, फिर उसके लिए हम लोग बहुत सारा मतलब ये रिसर्च किया कि कौन सी टाइल इज, इफ ही इज फॉल डाउन तो उसका वो स्क्रैचेस नहीं आना चाहिए स्किन के ऊपर, तो वो फिर सर्च आउट किया एंड देन वी हैव डेवलप द स्कूल। एंड जो 2 साल पहले तो हम लोगों ने पूरा ही रिनोवेशन कर डाला स्कूल का। तो फैमिली का जो है, पहले तो हम लोग मार्केटिंग के लिए जाते थे, तो माई फादर इन लॉ, मेरे ससुर जी मेरे साथ आए थे फॉर हैंडबिल पेस्टिंग इन ऑल एरियाज, मतलब मैं और मेरे फादर इन लॉ हम दोनों मिलके जो स्कूल के बैनर्स थे या तो फिर पैम्पलेट्स थे वो स्टिक करते थे हर जगह पे जाके। तभी तो मुझे ऐसे कुछ लगता नहीं था अरे ये तो प्री स्कूल ओनर है और खुद ही जाके मार्केटिंग करती, बिकॉज एट दैट टाइम यू आर द मार्केटिंग पर्सन, यू आर द एवरीवन इज यू, मतलब अगर आप बिजनेस चालू करते हैं तो आपको सभी का रोल जो है खुद को ही पहले प्ले करना पड़ता है। तो आई हैव लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम माय फैमिली एंड इवन मैं मतलब खुद में मैंने भी बहुत ज्यादा चेंजेस किए कि पेरेंट्स के साथ कैसे हमें ट्रीट करना है, पेरेंट्स को कैसे हैंडल करना है, बिकॉज एवरी ईयर मैं अलग अलग बहुत अलग लोगों से मिलती हूँ, हर एक का परसेप्शन, हर एक के क्वेश्चंस को हैंडल करना इज रियली वेरी लर्निंग प्रोसेस फॉर मी, मतलब वो भी मुझे बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। I mean, what should I say? I didn't know anything about preschools earlier. Now I knew something about preschools. And thank you very much for your family, your husband, your in-laws, that they supported you also. But most importantly, I am hopeful and I am praying that the future of these small kids, it should not be impacted by this coronavirus. I mean, that's my only thinking. And yeah, I think I enjoyed this podcast a lot with you. I came to know it was a fun podcast for that matter because everything was funny, everything was new, and I think Abhimanyu also liked it and he was smiling all the time. So yeah, it was awesome. So thanks, Sonali. Thank you very much for coming to our podcast, and I hope you like this experience also. And
To our viewers, as always say, please like, share, and subscribe our channel, and put comments down below and give us some topics, some suggestions, whatever you think, or whatever you think about this podcast, and what are your views about it. So, with that, I'll close this podcast and bye bye. Adios. Bye. Thank you so much, Varun and Abhimanyu. Thank you. inviting Thank you me. for coming. Yes. Bye bye. Take care. Yeah. Bye. Stay healthy and happy. Thank you. Bye. Check the mic and make sure it sound right, boys.